All right, ladies and gentlemen. Hello and welcome everyone. This is Professor Siddharth Surana. I hope you guys are doing good. मैं तो हमेशा मस्ती रहता हूँ. Control your emotions because we are now entering the last chapter of our syllabus, that is TDS, TCS. Normal circumstances. Honestly speaking, I just gave a brief idea about TDS within PGBP का chapter because there we are taught that if TDS is not deducted, so 30% expenses will be disallowed. TDS is a chapter which in CA final takes about 7 lectures, about 20 hours, more than that for CA final students. At intermediate level, they have kept it in the module, but superficial knowledge is expected. They may never ask a direct question on TDS. What they can do is, they can in the PGBP sum tell you that assessee has received a professional fees of 90,000. So what is his income? The income will be 1 lakh because it has come with 10% TDS. Traditionally, inter के students को the only thing I used to tell was, देखो, don't use your brain because you don't have also. If there is any TDS का figure given, so what to do with that TDS का amount? Add in income. You've received 90, but take 1 lakh as your income. We did this discussion in PGBP. You have received 90, but take 1 lakh as your income. So, लेकिन 10 कम मिला नहीं मिलेगा वो 10 भी. When at the end of the year, whatever is your tax liability, that will be reduced from the payable amount. देखो, liability will be on your total income. Once that is decided, take credit. It will be treated as like a prepaid tax. So, supposingly I am the CA. You are my client. Me CA, you client. Hi client. You have to pay me 1 lakh ka professional fees. Bill also I will make 1 lakh ka. Okay? But you will pay me 90,000. So you are like, yes! Cash discount. नहीं bro. ये जो 10,000 you are paying me less, you still have to pay it to the government. Government को जाके बोलना है, ये लो government advance tax. ये लो government advance tax. बाद में credit देना. Whom? Not you. Me. Because you have not paid from your pocket. You have deducted from my payment. It is like I have paid to the government. But you are acting as my intermediary, as my agent. That's TDS. Think about it from the client's point of view. Without TDS, you are going to have how much expense? Without TDS, 1 lakh. Your expense is still 1 lakh. Bolo how? 90 paid to me, 10 paid to government. You are not going to get anything. Gone, full 1 lakh. Your payment of 1 lakh has to be split into 90 and 10. Let's talk about me. Because client ka there is no profit that we understood. I was supposed to get how much? But I got only 10,000 ka nuksan ho gaya. I have got that 10,000 also. You know where? 90 in my account and 10,000 as my advance tax. Because that much I have to pay less. समझा क्या? That means in effect, can I say, payer has to pay 1 lakh with or without TDS? Payee will get 1 lakh with or without TDS. But just that, payee को full income मत release करो, 1 portion will be given to the government. And government say take it back. The question was, sir, why we need TDS? देखो, we can have lots and lots of discussion on TDS, which section, how much TDS. Question सबसे पहला that you will face now, why TDS? Supposingly you would have paid me full 1 lakh. I would have declared that 1 lakh as income. Included all my other income. That will become total income. I will get my total tax. I would have paid my tax. Why TDS? 2 reasons. I don't know whether I have given this to you in the past or not. We are treating it as a fresh chapter. 2 reasons why we have TDS. Reason number 1. Income tax department is also an organization which requires working capital. 1 month will get over. It will have to pay salary to its staff, rent of its offices, electricity bill, telephone expenses, petrol of its cars, bro. ऐसा थोड़ी सर्च करने को जाएगा बेस्ट का बस में, लोकल ट्रेन में. ट्रेन को बोलेगा रुक रुक रुक, पेटी अंदर भरना है. They need to incur their expenses on a monthly basis. They need revenue also on monthly basis. So what will happen? India भर में people will deduct the TDS of their payees. Where will deduct payee का TDS? Every day you make payments to people. Every day you deduct TDS. But every day you don't go. मतलब ऐसा नहीं कि 1st April को you pay 1 lakh to a CA तो deduct 10,000 pay 90. शाम को घर जाने के पहले go to income tax. Knock knock. High income tax. Take today का 10,000. कल काटूंगा किसी का तो कल देने को आऊंगा. Income tax is not a daily wage worker. Full month you deduct TDS, pay to income tax by 7th of the next month.
Is that understood? Very good. तो इंडिया भर से टीडीएस डिडक्टेड बाय पेयर्स ऑफ पेज will reach income tax department by 7th and 15th तक they can disburse all their expenses. The cycle will keep on flowing, no? That is why we have TDS. ये first logic है. Most people don't know about it. Second, supposingly I give you 1 lakh rupees in cash. Is there a probability of you not declaring that income? Yes. Yes, there is. Cash income not being declared is so obvious, but so old-fashioned. Modern days में what people do. I am being paid in check in my bank account. Bank account debit to capital account. Not showing this income anywhere in the PGBP. Not showing in P&L, automatically not coming in PGBP. Not showing check income. Cash income not showing has become old fashioned. Check में मिलता है and people are not showing. How will we check that? You will not get full 1 lakh. You will get only professional fees में 10% का rate है. There are some sections जिसमें 1% rate है, किसी में 2%, किसी में 5%. That's well precisely that is what we have to learn also. And there is no explanation to that. You have to learn इसमें इतना. Every section they have drafted and kept some rate. आप समझा क्या? तो 10% वाला एग्जाम्पल लेके चले तो 90 योर क्लाइंट विल गिव यू 10. अगर आपको वापस यू वांट योर 10, नो दैट्स योर 10, नो गो एंड टेक इट फ्रॉम द गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है अगेंस्ट योर पेएबल आई एम एडजस्टिंग दिस. यू आर गेटिंग योर फुल 10 बट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट से जाके मांगोगे सर गिव माई 10,000. तो उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट से नो सर आई गॉट 1 lakh. दिस 10,000 गॉट अट्रैक्टेड ऑन 1 lakh. तो गवर्नमेंट को यू विल हैव टू गो एंड टेल ऑल दिस. समझा? This is why they brought TDS. So basically you will receive your income after that deduction. But your income is the gross income. अगर 90 कैश मिला है and 10% is the rate of TDS, मतलब you have got 90%. If 90% is 90,000, तो 100% is how much? That means your income is 1 lakh. In your computation, how much you will take? 1 lakh. तो फिर ये जो 10,000 कम मिला उसका क्या करने का? लास्ट में टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस करके वी कॉल दैट अमाउंट एज अवर पेएबल और रिफंडेबल अमाउंट. इफ टीडीएस इज मोर इट कैन बी रिफंडेबल ऑल्सो. एंड इसीलिए हिस्टोरिकली एक लाइन में आईपीसीसी इंटर वालों को बोलता था एड इन इनकम लेस इन टैक्स इफ टीडीएस का फिगर इज डोंट यूज योर ब्रेन बिकॉज यू डोंट हैव ऑल्सो. लेकिन अभी क्या किया उन्होंने नवंबर 22 में पीजीबीपी का सम दे आज दे गिव रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नॉट इनकम एंड एक्सपेंस. कैश अकाउंट दिया तो डेबिट साइड पे रिसीट्स है. आइडियली दोज रिसीट्स आर इनकम्स, पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस. देख लेने का मतलब पेमेंट में ऐसा नहीं है कि इट इज फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो देन डोंट टेक एज एक्सपेंस, टेक डिडक्शन. लाइकवाइज रिसीट्स में कोई सेल ऑफ एसेट है तो यूज इट इन योर ब्लॉक का कैलकुलेशन. बट रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स एटलीस्ट दैट तो यूल टेक एज इनकम और एक्सपेंस. वेरी नॉर्मल. इसमें एक कीड़ा और इंसर्ट कर दिया. जैसे देखो यार बैंक अकाउंट में तो नेट ही मिलेगा ना. बैंक अकाउंट में तो नेट ऑफ टीडीएस ओनली यूल गेट. नो एज द रिसीवर थिंक अबाउट इट आफ्टर टीडीएस व्हाट यू गेट इज योर बैंक बैलेंस. नो मतलब अगर बैंक बैलेंस में यू आर गेटिंग 90,000 तो नॉर्मल स्टूडेंट विल डू व्हाट ऐड इन द इनकम 90, बट एक्चुअली इनकम में यू हैव टू ऐड 1 lakh एंड लेस इन टैक्स 10,000. इसके लिए यू नीड टू नो द रेट ऑल्सो. अब इन द क्वेश्चन इट वाज अ प्रोफेशनल फीस का क्वेश्चन तो 10% था, but it could have been a contractor. In fact, उसी question में they have, I think, said, I don't remember that question exactly. I think they have said that this payment he got as a contractor. 9,900. Listen carefully. Receipt is 9,900. अब contractor का TDS का rate is 1%. अब आप बताओ how much will go in income? How? 9,900 is 99%. So 10,000 will go in income and 100 rupees we will adjust against tax. The question was compute the total income and tax payment. तो कौन सा इनकम में क्या क्या रेट ऑफ टीडीएस है, इफ दैट मच यू आर अवेयर दैट्स ऑल्सो गुड इनफ. वंस वी नो द कॉन्सेप्ट, हैव वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ वी विल फोकस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें आई टेल यू कि दीज आर हैविंग मोर लाइकलीहुड ऑफ बीइंग आस्क्ड. तो ये देखो प्रोफेशनल फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया. देयर इज दिस
there is this series of section 194. आ चीज 194 आ चीज कौन सी चीज? 194A, 194C, 194H, 194I, 194J. When there is any interest payment, so what is the TDS? क्या रेट लगेगा, क्या थ्रेशोल्ड है? जैसे did I tell you while doing the previous chapter that FD interest में 40,000 क्रॉस होता है, then only there will be TDS. So if it is less than 40,000, there will be no TDS. वैसे यहां पे there is something called payment to contractor. तो उसमें रूल है that single payment is more than 30 या पूरे साल का पेमेंट इज मोर देन 1 लाख, देन ओनली देयर विल बी टीडीएस. दिस इज कमीशन, ब्रोकरेज. 15,000 से ज्यादा पे किया तो 5%. तो नाउ दे कैन आस्क यू एन एग्जाम. दे कैन आस्क 9,500 रिसीव एज कमीशन. तो इनकम कितना है? 10,000, क्योंकि 5% का रेट यू शुड. दिस इज फॉर रेंट. इसमें भी 10% है फॉर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर. बट प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट है तो 2% है. So there are two rates given. इसमें कॉन्ट्रैक्टर में भी ऐसा दिया है. If you are paying to individual HUF contractor तो 1% है, but if you are paying to firm company तो 2%. TDS का chapter is all about learning these rates and monetary limits, and this is your professional fees of course, जिसमें 10% is given. But इसमें भी कोई कोई जगह पे 2%. जैसे there is something called fees for technical services. There is something called royalty on films. Films जो supposedly a movie का प्रोड्यूसर has given his film to Amazon Prime या Hotstar, that means we are giving rights to show our film, no? TV rights sell होता है ना, तो वो that's called royalty on films. If you are giving fees to someone for running a call center on your behalf, से Reliance ने सिम कार्ड सेल कर दिया. अब Reliance का जॉब is to sell सिम कार्ड्स. After sale service they generally outsource it to other people. It is not done. आप रिलायंस के कस्टमर केयर में कॉल करते हो, इट्स नॉट रिलायंस का एम्प्लॉय, इट इज गिवन टू समवन एल्स. दे आर इंडिपेंडेंट कॉल सेंटर ओनर्स हु आर डूइंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस. उसके लिए भी पे दें, तो उसका भी यहां पे आता है, बट 2% टीडीएस कम्स. प्रोफेशनल्स को वेन्यू पे नो सीए, सीएस. ये कान बंद कर, कान बंद कर, कान बंद कर, जल्दी कर. तेरे को ही बोल रहा हूं, पीछे क्या देखता है? कान बंद कर, अरे बंद कर. Whenever you are making payment of professional fees to CA, CS, lawyer, doctor, engineer, architect, professional fees, they all come in this. These are the most popular ones. Maximum questions in final also come on this. In fact, if you do this much also, no, so you can say that you are very well prepared for interview. अब देखो पूछने को तो क्या है, they can ask anything from anywhere. Okay. You learn all the rates on all the sections of TDS, all the monetary limits, सब कुछ किया. लास्ट में एग्जाम के दिन पे इफ यू डोंट रिमेंबर द रेट तो योर एफर्ट्स आर डाउन द गटर. कितनी बार भी रिवाइज करोगे ना, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट यू विल फॉरगेट द रेट्स. सीए फाइनल के स्टूडेंट्स डोंट रिमेंबर सो मेनी रेट्स एंड monetary limits. They make maximum mistakes in TDS because they don't remember the rates. CA final. कभी अगर बाई चांस यू गेट अ चांस टू विजिट द ऑफिस ऑफ अ प्रैक्टिसिंग सीए हु डज सीए वाला वर्क एवरी डे, नॉट जस्ट अ नॉन प्रैक्टिसिंग सीए मे बी हु इज इन बिजनेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सीए. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीए हु इज डूइंग डेली का प्रैक्टिस का वर्क. उसके कैबिन में जाना, ही इज सिटिंग लाइक दिस. बाजू में देयर विल बी एक बॉल जैसा चार्ट लगा हुआ रहेगा, चेक कर लेना ऑन द नोटिस बोर्ड. यू आर द असिस्टेंट. आर्टिकलशिप में यू विल गेट टू सी ऑल दिस. You are the assistant. अभी you will not know TDS का rates. You will go and ask sir contractor है क्या TDS का रेट है, वो देख तो जरा AC 1%. अभी मैं बिजी हूं, थोड़ी देर में. तब तक वो कॉन्ट्रैक्टर देख के ला, फिर ही विल कॉल यू. 1 मिनट आ तो काम है. आज तू क्या पूछ रहा था? कॉन्ट्रैक्टर इज 1%. तेरे को इतना नहीं आता है. Most practicing CAs, I tell you, you will see them with a very, very angry expression on their face. They appear to be come out as very, very rude guys sitting. मतलब basically you will feel not to approach them.
ध्यान दे रहा है, इसको कौन मुंह लगाएगा? दैट्स द इमेज ऑफ मोस्ट प्रैक्टिसिंग सीएस. यू विल अवॉइड टॉकिंग टू देम. क्लाइंट जो होते हैं ना, दे डोंट कॉल देयर सीएस. उसका जो असिस्टेंट होता है या वो उसको दे कॉल एंड आस्क एनीथिंग इफ दे वांट टू. दे अवॉइड बिकॉज दे ऑलवेज आंसर रूडली. नॉट बिकॉज दैट सीए इज रूड, बट बिकॉज अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया ना तो सॉलिड पोपट होएगा. तो स्टे इन कैरेक्टर, बिहेव इन सच अ मैनर दैट नोबडी विल आस्क ओनली एनी क्वेश्चन. ये उनका स्टाइल है. एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग. दे आर नॉट सच पीपल. मीट देम आउटसाइड ऑफ देयर ऑफिस आवर्स. सच बोल रहा हूं. तो एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू नो, सच बोल रहा हूं, ऑल द रेट्स ऑफ टीडीएस कितना भी कर लोगे, लास्ट में देयर इज प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड दैट इफ यू डोंट रिमेंबर देयर. अब 90,000 दिया है, 10% होएगा तो 1 लाख है, बट 1% होगा तो इट कैन बी 1. देन 90,000 इज 99. 1 इज हाउ मच? इसका एक हिंट देता हूं. इंटर में एक हिंट दो. इंटर में दे विल ऑलवेज गिव यू द फिगर्स which if you take the net of TDS का रेट, वो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ, जैसे सपोजिंगली किसी पेमेंट में 95,000 दिया है. नाउ यू डोंट रिमेंबर के इसका TDS का रेट क्या है. द बेस्ट थिंग टू अज्यूम इज दैट नेक्स्ट अपर राउंड नंबर कहां पे आ रहा है? 10,000. 10,000 में हाउ मच भी डिडक्टेड, तो वी गॉट, नहीं 95,000 बोला तो 1 लाख. 1 लाख में हाउ मच भी डिडक्टेड, तो ये 5% TDS में होगा. 90,000 दिया तो 99,000 दिया तो 98,000 दिया तो 70,000 दिया तो नेट दिया तो यू कैन स्टिल मैनेज. नेट ऑफ TDS कैश बैलेंस इफ दे गिव, व्हाट इफ दे गिव यू द ग्रॉस अमाउंट? सपोजिंगली दे गिव यू 1 लाख. एक चीज अच्छा है दैट योर इनकम कंप्यूटेशन विल नॉट गो रॉन्ग इवन इफ यू डोंट नो द रेट. क्यों? ये 1 लाख वी हैव टू टेक. नो, देखो एक होता है ग्रॉस बिफोर TDS, नेट आफ्टर TDS. इनकम में व्हाट विल गो? द ग्रॉस अमाउंट. करेक्ट है क्या? नहीं. बट यहां पे योर टैक्स लायबिलिटी, वो भी टैक्स कैलकुलेशन विल नॉट गो रॉन्ग, फाइनल पेएबल में गो रॉन्ग इफ यू डोंट नो द रेट. समझा? तो नेट दिया है तो सबसे बेस्ट टेक द परसेंटेज विच टेक्स यू टू द DNS. ये डेंजरस ट्रिक है, ऐसा कोई लॉ नहीं है मतलब, बट यू कैन गेट राइट आंसर्स. लेकिन अगर ग्रॉस दिया है तो यू विल नीड टू नो द रेट्स ऑल्सो. आर यू गेटिंग एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ TDS? मतलब इस पूरे केस में ऑल द ड्यूटीज इफ यू सी एंड अंडरस्टैंड आर गिवन टू द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट. थिंक अबाउट इट. You are my CA, I am your client. I am making you payment of professional fees. It is your income. It is your tax, but duties are given to me. समझा नहीं? Income is of the payee. Tax is of the payee. But whom are we giving the duties to? The payer. Duties are being given to the payer, correct or no? What duties? सबसे पहले तो I should not give you 1 lakh. I should give you only 90,000. Can I say that is my duty to khach deduct? After deducting that 10,000 and releasing in your hand 90, what to do with that 10,000? Every day morning agarbatti ganti. So pay it to the government. Correct? You go and pay to the government. ये लो government 10,000. Next day go. मतलब हर महीने की 7 तारीख को you'll go. You take this. Government take this. Government take this. Government take this. तो government को सपना गिरेगा that who has to get credit of this? नहीं, I am the client. I am making payment of CA का professional fees. Someone I am paying rent. Someone I am paying interest. Someone I am paying commission. Businessman will to make all these payments. No? Salary he will pay to his staff. So TDS on salary will also come. He will give all this money to the government. But which money का credit to be given to whom? उसके लिए we have the concept of TDS returns. Return is basically information, a statement. In that return, in that statement, in that information, we will give details that मैंने आपको 1 लाख रुपया TDS का जमा कराया डियर गवर्नमेंट. इसमें से 10,000 is of CA, 10,000 of CAB, 10,000 of CAC. I will give details of the payees. जैसे ही the payer furnishes this statement called TDS return, तो पेई को एक ऑनलाइन स्टेटमेंट में दिखेगा that you are eligible for this much credit. Payee has agreed to get less than what he deserved. Why? क्योंकि later he will get credit. तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे if you log into the website, you get to see that online statement in which you are going to get the credit.
That is called Form 26AS. Online tax credit statement. But listen, supposingly I make payment to you professional fees 1 lakh on 1st April. So I will give you only 90,000. 10,000 I have to pay to the government by 7th of May. I go and give the government 10,000 rupees. Have I made payment? I have done my duty, but it will not get reflected in your credit. Why? क्योंकि return नहीं file किया तब तक identity is not given. Return has to be filed every quarter. मतलब जून क्वार्टर का रिटर्न बाय 31st जुलाई, सितंबर क्वार्टर का रिटर्न बाय 31st अक्टूबर. क्वार्टर गेट्स ओवर. अप्रैल का पेमेंट आई विल मेक ऑन 7th में, मई का पेमेंट आई विल मेक ऑन 7th जून, जून का पेमेंट आई विल मेक ऑन 7th जुलाई. मतलब 3 पेमेंट्स आई हैव मेड टू द गवर्नमेंट. बाय 31st जुलाई आई विल फाइल अ स्टेटमेंट एंड टेल द गवर्नमेंट कि ये 3 पेमेंट में इसको इसको इतना इतना क्रेडिट दे दे. वंस आई फाइल दैट रिटर्न, उसके बाद इन योर ऑनलाइन स्टेटमेंट दैट क्रेडिट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड. Sometimes it comes with a risk. Supposingly you work for someone in April. You have to accept the money after TDS, net of TDS. You can't insist, नहीं आपको पूरा देना पड़ेगा. इंडिया में लॉ है TDS का, तो you will have to accept. You accept बेचारा 90% for example, अगर 10% is the TDS. Under what impression? That this 10 which is deducted by my payer, he will pay to the government. Then I will get credit. You can't insist कि सर फॉर्म 26AS में दिख नहीं रहा है ऑनलाइन. अभी कैसे दिखेगा? इट विल बी विजिबल आफ्टर आई फाइल रिटर्न. फर्स्ट रिटर्न ऑफ फर्स्ट क्वार्टर इज फाइल्ड ऑन 31st जुलाई. तो समवेयर इन फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट इट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड. इट्स अ मैसिव पीरियड. देयर हैव बीन केसेस वेयर पेयर्स हैव रन अवे एंड नॉट पेड द टीडीएस मनी. इट्स अ लॉस फॉर द पेयर्स. उसमें समवन फॉट इन सुप्रीम कोर्ट एंड सेड इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू विल हैव टू गिव मी द क्रेडिट बिकॉज ऑफ योर लॉ. Because of your law, I had to get payment less than what I deserve. Now it's not my fault. If you want to search for that person. She won the case. There is a lady, Anusuya Alva, Supreme Court में जीती. Final में आता है ये सब. She won the case. General knowledge I'm giving you. You don't learn like you're learning a chapter for your exam. Knowledge के लिए I'm telling you. She won the case. But point is that this case law may not help you once you start working in the office. Because in the office, if your client has not paid that TDS का money, so your assessing officer का system will not allow you that credit. System will allow credit only if they have received the money. So you will claim credit in the return of income, but they will deny. Then you request them to rectify. There is a concept called rectification. Sir, please give me credit. They will refuse to rectify. They'll say that we have not received the money. Then you file an appeal that sir, I have received less money. Not my fault. And when we file that appeal, in that appeal, we have to tell the appellate authority, sir, Supreme Court has said that if my money has suffered TDS, so I will get credit. If you have not received, you catch that person. And you will win that appeal. CA practice is of 2 types, compliance practice and litigation practice. Compliance mein, you file TDS ka returns, you file GST return, you file income tax return. Nobody will pay you anything. Once anybody is who is little tax savvy also, no, wo login karke return filing anyone can do. CA is not required also. CA does not sign in the return. Client sign in the return. CA is required only for audit. Expression of opinion. Everybody is not covered under audit. इसलिए compliance practice is less remunerative. No one will pay you for something that everyone can do. But there is something called litigation practice. Win the case for your client. And if you win the case for your client, so slowly you will become famous. And once bombs are on fire, no, so the rocket has to go. Once the client is on fire, no, उसके बाद you open your mouth and he will fill your, आपका मुंह कितना ओपन हो सकता है उतना कैश he will fill in your mouth. That is how remunerative litigation practices, for which you need knowledge of case laws. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहां पे काम आएगा, not in day to day work, only while fighting cases. सबको जाके बताने का नहीं है, there is a case law, there is a case law, there is a case law. When you fight with the knowledge of that case law, you get paid for it. Understood? But understand the trouble of the payer here. Payer has to first deduct TDS. मतलब he was going to make one payment of 1 lakh. Now he will have to make 2 payments, 90 to the payee and 10,000 to the government.
दैट मीन्स कैन आई से 2 बार बैंक चार्जेस, या 2 बार चेक पे साइन करेगा तो डबल इंक विल बी यूज। कॉस्ट बढ़ रहा है, हंसने की क्या बात है, मारवाड़ी, एवरी रुपीज इंपॉर्टेंट, करेक्ट, डिडक्ट करके पे इट टू द गवर्नमेंट। देन सबसे एक्सपेंसिव पार्ट, एवरी क्वार्टर यू हैव टू फाइल टीडीएस रिटर्न। खुद का इनकम दिखाने के लिए भी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर? वंस, जुलाई अक्टूबर। दूसरे का टैक्स दिखाने के लिए पेयर हैज टू फाइल टीडीएस रिटर्न 4 टाइम्स इन अ ईयर। आप समझा क्या? मी पेयर, यू पे, आई पेयर, यू पे, ओके, फॉर यू, योर इनकम, योर टैक्स। आपके चक्कर में आई हैव टू डू ऑल दैट। आई गॉट वेरी एंग्री। आई गो एंड टेल द असेसिंग ऑफिसर, ए यो, हुज इनकम पे, हुज टैक्स, उससे मांग। ही क्या दैट आई शुड पे हिम लेस देन पे यू। अरे उससे डायरेक्ट लेके मांगना। हुज इनकम पे, हुज टैक्स, उससे मांग। आई विल नॉट डू ऑल दिस। I will not do all this. तो सुन पेयर, whose income? Pay. So for you it is expense. You want deduction? You want deduction? तो चुपचाप डू टीडीएस का वर्क। टीडीएस नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड। देखो वैसे यू हैव टू पे बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यू मिस दैट, यू आर लायबल फॉर इंटरेस्ट but not disallowance. But if you miss your 139(1) due date, so you will also have to pay, you will also suffer disallowance of expense. If the payee is resident, तो अभी तो बोलो 30%, and if the payee is non-resident, तो, and future में if you pay the money, तो whatever is disallowed now, it will be allowed later. That also we are giving facility, correct? So you will suffer disallowance. Interest also explanation में आ गया. There is some penalty also for this. And in extremely rare cases, there is provision for jail also for not doing TDS. Rarely they arrest anybody unless it is a very, very big case. You also understand income tax is a fiscal law. English. Fiscal law matlab it is created to generate revenue for the government. If they arrest you, they have to spend for you free food. तो हैप्पी ओनली, पॉकेट में खाना मिलेगा। वाओ, नहीं दरवाजा खुला रख के टॉयलेट करवाते। गया नहीं जेल में कभी? पूछ रहा हूं। आई हैड वंस गूगल रिव्यू देखा था जेल का मैंने, आपने देखा? देयर वॉज गूगल रिव्यू, नाइस स्पेस, लिटल डार्क बट देयर इज गुड एयर फ्लो. The handcuffs had a little rust, but they were still comfortable. I would recommend people to go at least once. ऐसा रिव्यू I had seen of a jail. सच बोल रहा हूं, जेल का भी एक जन ने रिव्यू डाला था. Seriously, I'm telling you. Okay? So listen, if they put you in jail, no, they have to give you free food. They don't want to spend on you. अगर बात पैसे से होता है तो they don't want to arrest you. इसलिए prosecution is extremely less likely as far as income tax law is concerned. In India, we have another law called the Black Money Act. तो CA फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स में आता है, इलेक्टिव पेपर में, नॉट इन DT बट इन द इलेक्टिव पेपर, इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी एक्ट, अंडर विच द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेस्ट यू. उसमें टैक्स रेट इज ओनली 30%. इफ यू हैव फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड एसेट या इनकम, फॉरेन में यू हैव एसेट एंड इनकम एंड यू डोंट डिक्लेयर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट्स. गेस करो हाउ? फॉरेन इनकम या एसेट यू डोंट डिक्लेयर तो 30% टैक्स. समझ लाइक सर 30, हमारे मुकेश भाई तो 42 भरते हैं. 30% प्लस 37 सरचार्ज प्लस 4 सेस करोगे ना, यू विल गेट 42.744. सर 30 नहीं, उसमें जेल का प्रोविजन दैट्स क्रिएटेड टू अरेस्ट यू, एंड उसमें यू कैन गेट अरेस्टेड फॉर एज हाई एज 40 years का जेल भी हो सकता है. 40 ब्लैक मनी एक्ट, बिकॉज दैट इज क्रिएटेड फॉर अरेस्टिंग. अब इमेजिन करो, नो वन टेक्स मां के पेट से बर्थ एंड डस टैक्स इवेशन. उसके लिए यू नीड इनकम. 25 साल तक तो यू आर अ स्टूडेंट. सीए में देयर इज नो अपर लिमिट. वन फाइन डे यू विल स्टार्ट अर्निंग, तो गरीबी का दिन होएगा बिलो बेसिक एग्जेम्पशन. 10 years you will take to fall in, start falling in higher. Tax professors after 10 years also don't fall in higher brackets.
If you are a rich businessman, so one day you will fall in higher brackets. That is when you will want to evade the taxes. So somewhere at the age of 35, 40, you will start evading. At the age of 50, you will get caught. 50 की एज में 40 साल का जेल हुआ ना ब्रो, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया. दैट्स ब्लैक मनी एक्ट फॉर यू. इनकम टैक्स में अरेस्ट का प्रोबेबिलिटी इज लेस, इसलिए अरेस्ट का प्रोविजन इज देयर, बट दे डोंट यूज इट. योर मेन प्रॉब्लम्स विल बी एज अ पेयर इफ यू डोंट डू टीडीएस का ड्यूटीज. क्या क्या? डिसअलावेंस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. पेनल्टी ऑल्सो इंटर के लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं. पेई का एक ही ड्यूटी है, पेई विल हैव टू गिव हिज पैन टू द पेयर. देखो, एज पेयर इफ आई डिडक्ट योर टीडीएस, आई विल गो टू द गवर्नमेंट, पे द मनी टू द गवर्नमेंट. तो आई विल हैव टू टेल नो ये किसका पैसा है, who should get credit. तो इनकम टैक्स डज नॉट नो पीपल बाय योर नेम एंड सरनेम. आई कांट गो एंड टेल इनकम टैक्स वाला पीपल दैट ये लो अनुष्का का टैक्स है, ये ले लो. अनुष्का को, कौन सा अनुष्का? विराट कोहली के घर में भी अनुष्का है. विच अनुष्का को भी गिव. आपका सरनेम क्या है? भागवत. हाँ, तो उसका सरनेम क्या है? नहीं, शर्मा थी ना वो. हाँ, तो विच अनुष्का? इनकम टैक्स कांट नो यू बाय योर नेम, नो. तो पेयर हैज टू टेल के पैन, ये अनुष्का भागवत है, इसका ये पैन है, इसको इसका क्रेडिट देना. तो फॉर दैट यू विल हैव टू गिव मी द पैन. नो, पेई हैज ओनली वन ड्यूटी, फर्निश पैन. And some pays are very smart. They don't furnish PAN. You know why? TDS 10% है. She is rich. देखो उसको बराबर से. Falls in 30% income tax. पैसे वाली है भाई. If she furnishes PAN, तो I will give her details to income tax. Income declare करना पड़ेगा. Credit मिलेगा 10% का. And tax लगेगा 30%. 1 lakh will come in your income, so you will pay tax at 30%. And credit will be only 10,000. She is like, भाड़ में गया. I don't want 10,000 का credit. I don't want 10,000 का credit. So she does not give me PAN. Correct है? तो फिर the rule is that I will deduct higher TDS. 10 नहीं, अभी 20 करूँ. If you don't furnish PAN, so TDS will be the rate that they have given, section by section, 1, 2, 5, whatever, or 20% whichever is higher. मतलब PAN furnish नहीं किया, तो TDS will become 10% और 20 whichever is higher. लेकिन कोई कोई सेक्शन में तो पहले से 30% दिया है. फॉर एग्जांपल कैजुअल विनिंग्स का टीडीएस, लॉटरी विनिंग्स पे, हॉर्स रेसेस पे जो टीडीएस है ऑलरेडी 30 है. देयर इफ यू डोंट फर्निश पेन स्टिल 30, बिकॉज इट इज सेक्शन का रेट और 20 विचएवर इज हायर. तो पेई इन विचएवर सेक्शन द रेट इज 1, 2, 5, 10 लेस देन 20. अगर आपने पेन नहीं दिया तो दैट विल ऑल्सो बिकम 20. एंड माइंड यू विल नॉट गेट क्रेडिट ऑल्सो. हाउ? पेन दिया ही नहीं है तो योर डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल. तो यू हैव ओनली वन ड्यूटी, दैट इज फर्निश योर पेन. फिर लास्ट ईयर दे चेंज वन मोर रूल. दे सेड देयर आर सम पेईज हु आर नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज टू लेजी. इंडिया में कितने सारे लोग हैं हु आर नॉट फाइलिंग रिटर्न. यू ऑल नो व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न? नॉट फाइलिंग, नॉट फाइलिंग, नॉट फाइलिंग, नॉट फाइलिंग. सपोजिंगली ऑल ऑफ यू ऑल डोंट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. तो दे आर टू लेजी टू गो एंड सर्च फॉर यू. तो वो लोग क्या बोलते मालूम है? Whoever does not file income tax return, उसका TDS ज्यादा कटेगा, डबल कटेगा. Whatever is the rate given in the section, 1 दिया है तो 2 कटेगा. डबल रेट और 5% whichever is higher, ऐसा कुछ दे said for those who don't furnish PAN. But वो काटने का responsibility is mine. Think about it. मतलब they are too lazy to check whether you are filing your return or no. So when I make payment to people, I have to check whether these people have filed return or not. If they have filed, so I will deduct as per section rate. First you give me PAN also, नहीं तो 20 होएगा. So I will take your PAN. If you don't give your PAN, तो 20. Correct है? And I will also check whether you have filed return. नहीं तो double. मतलब the duty to check whether you all have filed return or no falls on the payers. पेयर का वर्क दे आर इंक्रीजिंग. दे आर लाइक पेयर्स आर लाइक सर हम कैसे चेक करेंगे? नाउ यू वांट टू नो हाउ इट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली. 1 अप्रैल को इनकम टैक्स पीपल विल रिलीज अ लिस्ट दैट दीज पीपल आई हैव नॉट फाइल्ड देयर रिटर्न्स. ओके, इफ योर नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑन 1 अप्रैल, अब देखो, थिंक अबाउट इट. सपोजिंगली ये आपका 22-23 है.
1 अप्रैल को इफ दे रिलीज अ लिस्ट, तो 21, 22 के लिए दे कांट रिलीज लिस्ट ऑफ नॉन फाइलर्स, क्योंकि अभी तो ड्यू डेट गया ही नहीं है. तो दे विल रिलीज लिस्ट फॉर विच ईयर? इफ दे रिलीज ऑन 1 अप्रैल दे हैव टू रिलीज फॉर दिस ईयर, नो, क्योंकि इसका ड्यू डेट गया है. करेक्ट, इसका तो अभी स्टार्ट हुआ है. तो दे विल रिलीज अ लिस्ट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ 2021. करेक्ट. Supposingly you have filed return of 2021, that means your name will not be in there. उसके बाद in the full year no new name will be added in non-filers. ये आपके कॉलेज का ब्लैक लिस्ट जैसा है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो बाद में नहीं आएगा, होता है ऐसा, समथिंग लाइक दैट. तो वंस देखो, एज अ पेयर आई कांट गो एंड चेक एवरी डे. तो 1 अप्रैल को आई विल चेक द लिस्ट, मेरे पेई का नाम इस लिस्ट में नहीं था, तो देन फुल ईयर आई डोंट हैव टू ट्रीट हिम एज अ नॉन फाइलर. His name won't get added. ये हो सकता है that he has not filed his return year, तो his name is there, बट बाद में इसने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया इसका. देखो रेगुलर वाला तो चला गया ना टाइम लिमिट. ओके, और मे बी ये ईयर का नाउ ही हैज फाइल्ड रिटर्न एज पर नॉर्मल ड्यू डेट. तो वी विल रिमूव नेम्स बट वी विल नॉट ऐड नेम्स. देखो दैट मीन्स 1 अप्रैल को एज अ पेयर यू हैव टू चेक द लिस्ट. चेक किया, इन द लिस्ट योर पेई का नेम इज नॉट देयर, तब तो फुल ईयर मेक हिम फुल पेमेंट. जो नॉर्मल टीडीएस है वो डबल करने का जरूरत. बट ऑन 1 अप्रैल हिज नेम इज देयर, तो नॉन फाइलर करके यू डिडक्ट टीडीएस. ही हैज टू एक्सेप्ट इट बिकॉज नॉट फाइल्ड. वन डे योर पे विल बिकम अ फाइलर, तो ही विल कम एंड टेल यू कि अभी मैं फाइलर बन गया हूं. तो यू गो एंड चेक द लिस्ट. रिमूवल ऑफ नेम हैज हैपेंड और नो? मीन्स वंस द लिस्ट इज आउट, नेम्स विल बी रिमूव्ड बट नॉट एडेड, to make it convenient for payers. Otherwise, look at how much trouble the payer has to face. Is that clearly understood? So for payees, we are basically giving two duties. वैसे all duties of TDS are on whom? Payer. When we say all duties, मतलब deduct, remit to government, file return. Bloody hell, खुद का return once in a year, but pay के return को 4 times in a year. And issue TDS certificate, एक और duty. How will you prove that I have deducted your TDS? कोई proof तो चाहिए ना. So I will give you a certificate that I have deducted your TDS. I will pay to the government. This last duty. हाँ, we will give it to the pay. कि मैंने तेरा TDS काटा है, you can claim credit. एक बात बोलूं, people have stopped doing this certificate altogether. Why it is not required? I'll tell you. If you have understood everything that I have been telling you since I started, it's been almost 40 minutes now. That once I pay the TDS money to the government and I file the return, so in that return I will give your data, TDS return में, so in that online statement it will get reflected that I have paid the money on your behalf. So in your list of tax credit this will appear. So why you need certificate? वो लोग खुद ही तो बोल रहा है तेरा पैसा आ गया. Supposingly today Neil is absent, it is my last lecture. Example लेता हूं. If it today was my last lecture, okay, और मैं यहां पे 10,000 रुपया छोड़ के गया, बोला नील को दे देता, तो नील will need in writing from me that I have paid your 10,000 to someone. तने को दिया ऐसा. लेकिन अगर तने कॉल करके नील को बोल दिया कि तेरा 10,000 आ गया मेरे पास, then why you need certificate? You understood? तो once it is reflected in the online tax credit statement, तो पेई लोग don't fight. बोला ठीक है, it is, I can see that you have paid and I am getting the credit. तो फिर चल रहा है. Understood or no? हाँ, तो ये है basic about TDS. Ultimately, section by section nature of payment will keep on changing. So in which section what is the amount being paid, and on that what is the TDS का rate and what is the threshold. To give you a small example about this, जैसे interest के लिए I told you 40,000 का threshold. Professional fees, I'll take the example because 10% all throughout we are taking example of professional fees. And real life में threshold के लिए भी this is very famous. Professional fees का TDS will come only if the payment is more than 30,000 rupees. तो obviously आपके बैच के केस में मेरा TDS कटेगा थोड़ी. You think I am getting more than 30,000 for your batch? I do one thing. अगर दया आ रही है ना तो गूगल पे का नंबर देके जाता हूं. इच्छा अनुसार यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. एक और आइडिया देता हूं.
ओके, माई गूगल पे का आई गिव यू दैट क्यूआर कोड, स्कैनर जो होता है मतलब तो क्यूआर कोड देके जाता हूँ, उसके प्रिंट आउट्स निकाल देना, छुपके छुपके शॉपकीपर का शॉप है उस पे, उसके स्कैनर के ऊपर मेरा क्यूआर कोड, यू सपोजिंगली यू टेक एनी एडमिशन अभी और मे बी सम इंस्टॉलमेंट इज गेटिंग ड्यू, तो उधर ऊपर मेरा चिपका देना, तो whoever comes and pays on that by scanning that QR code, अपना अलग ही जामतारा चलता है। QR कोड दो, go around the city pasting my QR code, क्यों? मैं भी पूछता हूँ, मैं तो कंफर्म करता हूँ। आई वॉज वंस पेइंग अन्ना इडली वाला, इडली खा के उसमें दिखा रहा था यादव, मैं बोला तू भैया है कि मद्रासी है? वो आई आस्क्ड हिम, ही सेड आई एम अ तमिलियन। मैं हाउ आर यू यादव? यादव आर बिहारी। बोला नहीं, तमिल में भी देर आर यादव। देन ही सेड व्हाट यू नो, साहब आपको तो मालूम है ना मराठी में भी यादव होता है। मैं बोला ये जादव होता है। यादव नहीं है, जादव है। वी आर इंडियंस, नो सरनेम देख के भी आइडेंटिफाई द जात। हाँ, बराबर है ना, वी आर इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, सर्वेश का सरनेम पटेल है तो नो नीड टू टेल दैट सर्वेश इज गुज्जू, के कुलकर्णी है तो नो नीड टू से कि वो सरनेम के अंदर ही तो जात छुपा है। वी आर इंडियंस नो अल्टीमेटली। क्या है? हाँ, हाउ ऑब्वियस, वंस योर सरनेम इज शाह यू आर बेसिकली रूलिंग द कंट्री। गैजेट में दे देता हूं चेंज ऑफ सरनेम का, लॉल। तो बाय द वे, लेट्स बी क्लियर, वी आर इन टीडीएस and have you understood that payer has 4 duties? Payee has 2 duties: give pen to the payer and file return, otherwise there will be consequences. Ultimately your target will be हर एक सेक्शन का रेट्स एंड मॉनेटरी लिमिट लर्न करना। द मोस्ट पॉपुलर इज प्रोफेशनल फीस 30,000 रुपीज। आपके बैच में लेट्स अज्यूम एग्जाम्पल दैट आई एम गेटिंग मोर देन 30,000 एग्जाम्पल है, बिलो बेसिक एग्जाम्पल, मतलब आई थिंक लेट्स अज्यूम दैट आई एम गेटिंग मोर देन 30,000, तो देयर विल बी टीडीएस 10%। सपोजिंगली एग्जाम्पल 30 के ऊपर कोई भी एक नंबर बोल, 50,000, तो आई विल गेट ओनली 45, बट माई इनकम विल बी 50, 5 will be paid to the government. I have to claim from the government. But if I don't give my PAN, तो फिर 5 नहीं 20 होए। And if I am a non-filer, तो it will be double rate. ये समझा? Everyone is clear? Then payer का ड्यूटी क्या है? Deduct, मतलब pay me only 45, pay 5,000 to the government, file TDS return so that my online statement shows the credit, and give me certificate that I will not insist. क्योंकि if it is reflected in the statement, that means they have paid. But the last catch here is the monetary thresholds given in every section. For example, professional fees में 30 दिया है, मतलब 50 में there will be TDS. But if you are making payment of 20,000 professional fees, you will not deduct TDS. Be prepared to face these questions. FD interest में मैंने आपको बोला 40,000 rupees while doing that 234 ABC का sum, 40 से ज्यादा होता है then only there is TDS. उसमें भी there is अलग rule that if it is a senior citizen तो 40 भी नहीं 50 है. So if I am getting 45 interest, there will be TDS. But a 60-year guy getting 45 interest, no TDS. So TDS will come only if the payment crosses the monetary limit, which changes section by section just like the rate. ये सबसे बड़ा problem. If at all you want to become a TDS perfectionist, you will have to learn the rates and monetary limits of every section. No student at inter knows that. No student at final knows that. Practicing chartered accountants have a chart, वो चुपके से देखता है. Tax faculties, I'll be honest, till the time they were students, उनको भी एक भी रेट याद नहीं था. Tax faculties, faculty नहीं, faculty, as students नहीं याद. पढ़ाना चालू किया, TDS का लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर्स, आज कौन सा सेक्शन करूंगा उसका लर्न करके, आज कौन सा सेक्शन उसका लर्न. बट व्हेन यू वंस, एक टाइम आता है जब एक ही दिन में एक ही चैप्टर 3-3, 4-4 बार रिवाइड हुए, सेम चैप्टर, मॉर्निंग सीए फाइनल लेक्चर, इवनिंग सीए फाइनल लेक्चर, आफ्टरनून में सम सीए फाइनल का प्राइवेट ट्यूशन देता है लोग, एंड दे आर विलिंग टू, ऐसा अपना प्राइवेट ट्यूशन का सिस्टम है
टाइम स्टार्टेड, मीटर स्टार्टेड, टाइम खत्म, मीटर स्टॉप, स्टैंड अप फ्रॉम द प्लेस एंड पे दिस मच, इतना बिल बनता है। अब उसमें कोई कोई स्टूडेंट दे आर लाइक दे आर टू लेजी, नो दे बहुत रिच है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर टू लेजी, उनको बोर होता है, तो वो कॉलेज का 10-15 मिनट टाइम पास, तो करना है जो कर, मीटर चालू, यू डू टाइम पास, दैट्स योर चॉइस, आई डोंट वांट टू किल अ सिंगल। हाँ, उल्टा कभी मैं तो ये करता हूं दैट इफ इट इज 3 hours and 5 minutes आई चार्ज ओनली फॉर 3 hours, मतलब 5 मिनट ज्यादा वो ठीक है, बट इफ दे किल टाइम दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो वो 3 घंटे बाद में उस जगह से उठने के बाद में जो बिल बनता है, बेसिकली बाय द एंड द टोटल फॉर 1 person इज व्हाट 1 entire बैच विल पे फॉर द सब्जेक्ट। अपना एफर्ट तो उतना ही लग रहा है ना। और फिर वो पर बाय द, आई नॉर्मली डोंट वर्क बाय द आवर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन में बाय द आवर करना पड़ता है, नहीं तो फुल सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में देयर हैव बीन केसेस, सर अभी रोज आके थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दो। हाँ आएगा, घड़ी चालू रहेगा, अपने आप रिविजन, सर आई विल डू द रिविजन, आई विल आस्क यू डाउट्स, अपने आप चेंज होता है। इंडियंस नो आफ्टर ऑल, इसीलिए वी हैव टू चार्ज बाय द आवर इन प्राइवेट ट्यूशन। ओके, तो अब ऐसा है, बाय द आवर का रेट है। नाउ द स्टूडेंट से सर बहुत बोर हो रहा है, थोड़ा गा के सुनाओ, ठीक है, मीटर चलेगा ब्रो, मीटर चलेगा, यू से गा के सुनाओ, नाच के दिखाओ, थोड़ा दूर बैठना, नहीं तो लगेगा तेरे को, एक मैं नाचेगा तेरे को लगेगा। आप समझा क्या? तो मॉर्निंग में सीए फाइनल, इवनिंग में सीए फाइनल, आफ्टरनून में प्राइवेट ट्यूशन, या फिर आफ्टरनून में सीए इंटर, एक ही दिन में 3-4 टाइम्स द सेम चैप्टर वॉज डन। तो इन द सबकॉन्शियस माइंड डेटा स्टोर हो गया इनकम टैक्स लॉ का आफ्टर 12 years। Why am I telling you all this? मतलब सर तुमको स्टार्टिंग में लर्न, किसी को लर्न नहीं, मतलब यू थिंक दैट somebody who has started teaching you just because the person is a CA, तो उसको सब, I have taught accounts, costing, FM, audit, DT, IDT, everything, तो all the subjects are by heart to that person. Does it ever work that way? Never, कभी भी नहीं, by heart कभी नहीं हो सकता। अरे I became a CA and I was teaching binomial distribution, Poisson distribution, CPT मैथ्स, मैं CPT वाले को पढ़ा था। फाउंडेशन आया, उसके पहले आई स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड फोकस्ड ओनली ऑन टैक्सेशन। फाउंडेशन के बहुत पहले ये सब छोड़ दिया, बट फुल CPT मैथ्स, वो जो आपका पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, और वो एवरीथिंग आई हैव टॉट। रात को बैठ के वो सब MCQs मैं सॉल्व करता था घर पे। नहीं सर, यू आर अ CA, यू शुड नो बाइनोमियल, यू शुड नो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। माथा जिस दिन एग्जाम देके आया उस दिन ही भूल गया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। बट यू हैव टू टीच, तो यू हैव टू लर्न। 3 hours का लेक्चर, 6 hours का सेल्फ स्टडी, दैट्स हाउ टीचिंग करियर स्टार्ट्स। बट आफ्टर अ पॉइंट देयर कम्स अ स्टेज, ब्रो ब्रिंग इट ऑन बेबी, मैं इधर ही बैठा हूं, एक क्लास जाओ, दूसरा हो, तीसरा हो, बिकॉज सेम थिंग ही तो करना है कितनी बार, तो सबकॉन्शियस माइंड में लर्न। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? टेक दिस एज मोटिवेशन। We will put our best effort in learning the TDS का rates and monetary limits, but कितना भी कर लो, वो कौन सा मूवी था, कितना भी कर लो बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, ये जवानी है दीवानी। वो बेसिकली दे मेंट अबाउट TDS का चैप्टर, कितना भी कर लो। They were discussing TDS का चैप्टर, you don't know, they were discussing डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस इन जनरल, कितना भी कर लो कुछ तो छूटेगा ही। हाँ, वो लोग को सब मालूम है। दे वर टॉकिंग अबाउट, ये जोक में लॉजिक निकालता है, लॉजिक के बात में इसको लॉजिक नहीं है, बट जोक में ही वांट्स लॉजिक। डायरेक्ट टैक्स इन जनरल एंड TDS इन पर्टिकुलर, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। सो वी विल ट्राई टू सी व्हाट आर द रेट्स एंड मॉनेटरी लिमिट्स। विल क्विकली गो थ्रू जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आई विल टेल यू कि ये किसी में कुछ लॉजिक है तो आई विल ट्राई टू टेल यू दैट। ऑल्सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो अपना फाइनल का हैंड रिटन बुक है उसका जो PDF है उसमें से वी विल बी डूइंग, एंड देन लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो वो वाला PDF, वैसे भी रोज PDF लेना इज योर मेन हॉबी, तो वो वाला PDF उस दिन ले लेना। इन फैक्ट नाउ देयर विल नॉट बी एनी राइटिंग ऑन द नोटपैड, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दैट PDF ओनली। तो अभी तेरे को अगले 2 लेक्चर तक PDF लेना ही नहीं है आज का लेना है, आई सेड नेक्स्ट 2, मतलब फ्राइडे एंड मंडे। ट्यूसडे को पूरा चैप्टर का एक साथ ले लेना,
और ट्यूसडे को ब्रिंग एक्स्ट्रा नैपकिन्स। रोना आएगा ना, you'll want to cry, no? तो bring extra napkin, towel ला सकते हो चाहिए तो. Okay, we will go to the chapter called TDS, as I said from our. Final में it is called as recovery of time. Are you able to see थोड़ा सा clearly? Actually में क्या है, थोड़ा प्रोजेक्टर का फोकस इस 19-20, तो दिस मे बी इज नॉट वेरी क्लियरली विजिबल. ये कौन है? यू कैन सी दिस क्योंकि इन द रिकॉर्डिंग इट इज वेरी क्लियरली विजिबल. और ये डायलॉग मालूम है, मरने का क्या तेरे को डर नहीं लगता क्या? सेंसर्ड ब्रो. यूट्यूब पे आई विल नॉट बी अलाउड टू अपलोड इफ एनी वर्ड इज यूज्ड, नो. तो वो बेसिकली वो चैनल को ब्लॉक कर देगा. तो ये स्टार इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर, मैं एग्जैक्टली व्हाट यू हैव बीन डूइंग डिस्पाइट बीइंग अंडर 18, व्हाटएवर यू हैव बीन डूइंग, ये वही है. तो मरने का क्या तेरे को स्टार डर नहीं लगता क्या? Whom are we talking about? Any payer. Do we remember all duties are on the payer? तो what consequences will he face? Disallowance, interest, सब कुछ तो उस पे आएगा. तो better do the duties, नहीं तो मरेगा. डर नहीं लगता क्या? एक मिनट, तू लेक्चर के बाद रुकना. You stay back. Okay. वो स्टार क्या था? You and outside the premises, क्योंकि CCTV will catch audio also. And I don't want to be on the wrong side of the law. तो बिल्डिंग के नीचे मिलना, स्टार का फुल फॉर्म आई विल टेल यू. कैन यू बिलीव देयर इज अ प्रोफेसर जिसने सीए फाइनल की टेक्स्ट बुक में ये डाला है? हाँ है. तो ऑब्जेक्टिव इज दैट, यही प्रोफेसर है. हाँ नहीं मतलब लेट्स बी क्लियर. ऑब्जेक्टिव इज knowledge of direct tax today should be better than yesterday. You should be the best in the exams. तभी तो I will be the best. और इसके लिए I have not spared anyone. मैंने अपने वाइफ को नहीं छोड़ा, काश छोड़ने मिले, बट मैंने वाइफ को नहीं छोड़ा. You have seen me making fun of my brother, almost all my family. And my brother ka making fun sometimes also indirectly involves making fun of my mom also. Because younger ones are the more loved ones, the pampered ones, which is true also. But if I don't leave anyone, so I don't care about what people say. कि तू फाइनल की टेक्स्ट बुक में सच में थोड़ी क्या वो लिख दिया जो नवाजुद्दीन ने बोला था, लिखा थोड़ी है. एंड दिस इज तो सेक्रेड गेम्स. इन दिस वाज सेक्रेड गेम्स, नेटफ्लिक्स में था. इन सम चैप्टर्स ऑफ सीए फाइनल टेक्स्ट बुक देयर इज मिर्जापुर. एक मिनट दिखाता हूं, 1 मिनट. दिस इज द, ये न्यू टेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है सीए फाइनल में. ओके, सीए फाइनल का टेक्स्ट बुक स्टार्ट्स विथ इंट्रोडक्शन डायरेक्टली टैक्स रेट्स. ये डायलॉग सुना है, सबको चंदा देना होगा पर सबको टैक्स छोड़. दिस इज तो स्टिल फाइन. डिड आई शो यू दिस पेज बिफोर? I did. ये रिबेट वाला आदमी है, ये सरचार्ज वाला आदमी है. At that time you did not know what is rebate and what is surcharge, no? At that time you did not know what is rebate and surcharge, no? Now you know what is rebate and surcharge. That time you may not have understood. Now you will understand. ठीक है, ये है टैक्स रेट्स आपका. डू वी नो दैट 2537 डज नॉट अप्लाई टू सर्टन असेसीज? हाँ ठीक है, ये वाला भी अमेंडमेंट्स आई हैव टोल्ड यू. जैसे एओपी का मैक्सिमम 15%. देखो फाइनल की बुक में इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट नो, तो ऐसे रेड कलर के अंदर वी राइट इट. इन योर बुक ऑल्सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, वो हाईलाइट करके वो क्लियरली विजिबल है ऑल द अमेंडमेंट. आई मेक अमेंडमेंट्स एंड नाउ द न्यू टैक्सेशन रेजिम. हमको ज्वाइन कर लो. तुमको ऑप्शन दे रहे हैं. ये सीन नहीं देखा तू तो भाई. मैं आई स्टिल डिस्टिंक्टली रिमेंबर, जिंदगी हो तो ऐसी हो, यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट दैट सेंटेंस व्हेन आई स्टॉप्ड यू. आई वेरी वेल रिमेंबर. ये डायलॉग नहीं देखा आप लोगों ने?
गूगल करना, आई टेल यू व्हाट टू गूगल, रतिशंकर शुक्ला, गूगल व्हाट, रतिशंकर शुक्ला ऑप्शन वीडियो, रतिशंकर शुक्ला ऑप्शन वीडियो लिखो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। रतिशंकर शुक्ला ऑप्शन वीडियो, यू विल कम टू नो के तुमको देखो न्यू टैक्सेशन रेजिम ऑप्शनल है, दैट तो यू नो, यही वो न्यू टैक्सेशन रेजिम है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल, डिड वी स्टडी दैट? स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स विल अप्लाई, डिड वी स्टडी? दोज असेसीज who don't have business profession can change every year and who have business profession can take new, go back to old but can't go, ये सब पढ़ा है हमने क्या? किसमें? थंबनेल में। You, I didn't tell you to do that in the middle of the class. हाँ, ए चुप। So basically these are the memes that I am talking about. You are getting carried away now. Come back to PDS. Okay? तो कैसा है कि फाइनल सीए का टेक्स्ट बुक है और मिर्जापुर वाला बैड वर्ड्स भी है टेक्स्ट बुक के अंदर, नॉट टाइप्ड बट स्टार। ताकत है तो कोई ऑब्जेक्शन लेके दिखाओ, मत पढ़ो मेरी बुक से, फोर्स नहीं कर रहा हूं। पीपल आर एंजॉइंग दिस, मतलब माइंड तुम्हारा भी वैसा ही है, एंड आई नो योर माइंड्स, which is why I did this. मजा चाहिए, लेकिन सर हाउ कैन यू डू? अरे मैं भी मिर्जापुर देखा है, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सीजन 3 फॉर मोर मीम्स। तो मेरी मर्जी, मत पढ़ो। यू डोंट लाइक दिस, यू फाइंड इट बैड, यू फाइंड इट कि सर हम प्रोफेशनल कोर्स का बच्चा है, वी शुड नॉट, आई हैव एक्चुअली नॉट रिटन द बैड वर्ड, स्टार से कवर किया ना उसको, मत पढ़ो। नहीं सर मजा तो इसमें आता, तो डबल बात मत करो, डबल ढोल की। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हैव वी अंडरस्टूड द फॉलोइंग थिंग्स? x is a payer, see if you understand, x is a payer, is making payment of example 1 lakh. These are things that I have been discussing with you since I have started. तो उसमें ही has to deduct tax. ये example है 10,000 because 10,000 is not the only rate of TDS. I have taken example of client and CA, इसीलिए I have taken 10%. तो the CA will get net in his hand 90, correct? Whose income is this? CA का income. Who has to pay tax? He. But all the duties will be on the payer because it is your expense. And now why do we call it tax deducted at source? Do you agree he is the source of income? Yes. For employee, employer is the source of income. For CA, client is source of income. For landlord, tenant is source of income. For lender, the borrower is source of income. तो इसलिए tax deducted at source इसका नाम रखा है। समझ में आता है? Correct? Income of Y, that is the CA, is expense of X, is the gross amount. Despite they are doing cash transaction only of 90,000, क्योंकि Y has to still pay, नहीं Y नहीं, X has to still pay 10,000 and Y will still get 10,000, but through the government. मतलब now I say one line, TDS is an advance tax paid by the payee to the government, but not directly. ये डायरेक्टली जाके 15 मार्च या 15 जून या सितंबर नहीं, थ्रू द पेयर, थ्रू द सोर्स you get credit. Is that clear? Whose responsibility everything in the chapter? What? Deduct, deposit, return filing every quarter certificate, and this certificate is something that we are not doing in real life because automatically जैसे ही return file किया ना, it gets reflected, is what I have been explaining to you. And listen, that argument याद है? His income, his tax, take it from him. His income, his tax, but your तो disallowance. This is relevant. Actually एक बात बताओ, only for this we are doing TDS का chapter क्योंकि PGBP आता है. Disallowance, correct है? Interest, no need to learn the calculation at inter. Final के लिए रहने दो. Penalty का तो chapter है final में out of the 43 chapters. And prosecution तो I don't teach in final also. तो करते ही नहीं है वो लोग कभी. Once in 5 exams they ask for 1 mark. उसके लिए it does not merit any time. Okay? तो छोड़ते हैं. कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटना ही है. It is direct tax after all. Okay? If this is something which is interrelated with something else, no. जैसे इसका इफेक्ट इज कमिंग इन पीजीबीपी या कैपिटल गेन या एनी अदर चैप्टर, तो वी कांट लीव सच थिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, बट डायरेक्टली नहीं भी करना है तो चलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट टीडीएस इज नॉट अ लेवी ऑफ टैक्स, ओनली अ डिडक्शन. यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. सपोजिंगली दिस सीए गॉट मनी
ये कट के मतलब कहना इसे प्रोफेशनल फीस पे 10% टीडीएस है, तो इज 10% द इनकम टैक्स रेट ऑफ दिस ईयर? उसका इनकम टैक्स रेट क्या होगा? 0, 5, 20, 30 इन ओल्ड रेजिम, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 in the new regime. Income tax will be calculated as per the rates studied in tax rates chapter. TDS is a temporary deduction. सुनो, if the payment was less than 30 ना, तो TDS लगता भी नहीं. ये clear होना चाहिए. That what is the threshold given for professional fees? This different sections different है. Interest में 40 है, rent में 2,40,000 है, commission में 15,000 है, casual winning में 10,000 का limit है, but that is per payment. These other things are per annum. ये सब ही तो यू हैव टू लर्न, एंड कितना भी कर लो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एवरीथिंग. अंडरस्टैंड क्या है? आई टेल यू, प्रोफेशनल फीस 30 से ज्यादा है तो टीडीएस, रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस. तो आई डोंट हैव टू शो ऑफ कि आई नो ऑल द फिगर्स. बाय नाउ यू ऑल नो दैट आई नो फुल इनकम टैक्स लॉ, एंड व्हेन आई डिड नॉट नो एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, आई नेवर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट आई डोंट नो. उस टाइम नहीं बताया, बट नाउ आई नो. तो अभी तुम पूछ लो रैंडमली कोई भी सेक्शन, सर इस सेक्शन में व्हाट इज द रेट? आई विल नॉट टेल यू वो देख ऐसी देख ऐसी देख, नहीं, पूछ लो. तुम सेक्शन कैसे पूछेगा? यू ऑल्सो डोंट नो. मैं कुछ भी बोल दूंगा तो भी यू विल एक्सेप्ट एज राइट ओनली. नो क्या 10-10 बीसी टीडीएस चल रहा है? टीडीएस में कौन सा 10-10? पागल. में टीडीएस का रेट एंड मॉनेटरी लिमिट का बाय हार्ट का आई एम डिस्कस, वो आपको भी नहीं पता. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई एम टेलिंग यू. नो, तो यार आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ दैट मेरे को 30,000 का लिमिट पता है या 2,40,000 का लिमिट पता है. इफ इट क्रॉसेस दैट लिमिट तो देयर विल बी टीडीएस. इफ इट डज नॉट क्रॉस दैट लिमिट तो देयर विल बी नो टीडीएस. मींस सीए को इफ यू पे लेस देन 30,000 तो देयर विल बी नो टीडीएस. तो इज दैट एग्जैम्प्ट इनकम ऑफ दिस ईयर? ये वो लाइन है. ये वो लाइन है. If TDS is deducted, it is deducted. If not deducted, तो not deducted. You pay tax. मैं तो बोलता हूं 1 लाख का पेमेंट टू सीए लायबल फॉर TDS. क्लाइंट भूल गया, पागल है. He does not have a good consultant. He paid full 1 lakh. Will the client face these consequences? अरे, client has paid 1 lakh to the CA without deducting TDS. पूरा पैसा दे दिया. If that means there is failure to do TDS duties, so will there be TDS? Will there be consequences on the client? Yes. CA क्या बोला पता है? Third C. I got 1 lakh. Client forgot to deduct TDS. तो his fault. अभी मैं टैक्स नहीं भरेगा. अरे, TDS will be deducted if it has to. Maybe not deducted if the client is at fault. For you 1 lakh is income. On that you have to pay tax. Calculate tax, pay. If it was deducted, take credit. If not deducted, तो no credit. But your tax liability cannot change. Your income cannot become exempt because there is no TDS. आप ये नहीं बोल सकते हो that 20,000 paid to a CA is exempt income because there is no TDS. 20,000 paid to a CA is also taxable. 2 rupees paid to a CA is also taxable. If it has suffered TDS, so take credit. Not suffered, so offer that 2 rupees to tax, add in your total income, compute tax and pay. That is called making direct payment. If TDS is not deducted, so you will have to make direct payment. Is that clear? Okay. ये जो employer of startup है, startup का जो section 80 IAS is not there in your syllabus only. तो ये ना बाद में ये देखा बाद में अभी टाइम नहीं. बाद में हाँ. तो हाँ समझा, आगे बोलो. उस सेक्शन का मॉनेटरी लिमिट कितना है? बिकॉज 30 इज एन एग्जाम्पल दैट वी आर डूइंग. एवरी सेक्शन हैज डिफरेंट लिमिट्स. नो, 30 वाला ही लेना है. फर्स्ट 20 इज बिलो मॉनेटरी लिमिट, नो TDS. सेकेंड 20 में यू नो दैट यू हैव क्रॉस द लिमिट,
इससे चालू करो. ऑन व्हाट अमाउंट? 20 ऑन दैट पेमेंट विथ विच यू आर क्रॉसिंग द लिमिट. ऐसा नहीं होगा दैट अभी तक 10 का लिमिट बाकी है तो फर्स्ट 10 पे नहीं नेक्स्ट 10 पे फ्रॉम. एंड ऐसा नहीं होगा व्हाट इज पेड अर्लियर इज पेड, यू कांट गो बैक इन टाइम. फ्रॉम विच पेमेंट यू हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड दैट विल स्टार्ट. सेकंड वाला 20 जो है दैट विल अट्रैक्ट टीडीएस. फर्स्ट 20 इज गॉन, इज गॉन. ए सुनो, टैक्सेबल फॉर द रिसीवर विल बी फुल 1 लाख. टीडीएस विल बी ओनली ऑन 80,000. द रेस्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स. आपका जो एग्जांपल था 5 में से फर्स्ट 1 लाख विल बी इनकम. एड पूरे साल का अदर इनकम, टोटल इनकम, टोटल टैक्स 8,000 का क्रेडिट. 80 पे काटा ना, 80 पे 10%, 10 अज्यूम किया, 80 पे काटा ना, 8 का क्रेडिट. अंडरस्टूड? दिस अगेन प्रूव्स द लाइन इट इज ओनली अ डिडक्शन नॉट अ लेवी ऑफ टैक्स. पूरे चैप्टर में वी फॉलो दिस सिस्टम एक्सेप्ट वन सेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर में कैसा दिया पता? सिंगल पेमेंट का लिमिट 30,000, पूरे साल का लिमिट इज 1 लाख. तो सपोजिंगली वी पे 20, सिंगल पेमेंट इज लेस देन 30, फुल ईयर का लेस देन 1 लाख, नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस. फाइनली 1 लाख पे भी नो टीडीएस क्योंकि ग्रेटर लिखा है. दिस इज ऑल्सो वन प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ पीपल गो रॉन्ग. क्या ग्रेटर है कि इक्वल टू कवर्ड है? देयर आर 3 places where equal to is covered. I'll talk about that when the chapter में section comes. 3 places पे equal to is covered, everywhere else equal to is not covered. करेक्ट. कॉन्ट्रैक्टर में इक्वल टू इज नॉट कवर्ड, तो मतलब 1 लाख पे भी नो टीडीएस. नाउ यू पे 20,000 मोर, सिंगल इज स्टिल लेस देन 30, बट टोटल हो गया ना 120. नाउ लिसन, इन ऑल अदर सेक्शंस व्हाट डू यू डू? ओनली ऑन दिस 20 यू डिडक्ट टीडीएस. बट इन कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन डू यू हैव अ सेपरेट लिमिट ऑफ सिंगल पेमेंट एंड दिस टीडीएस इज गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ एनुअल लिमिट. तो इस 20 में से 120 का टीडीएस कटेगा. मतलब पास्ट पेमेंट्स विच हैव नॉट सफर टीडीएस, उसका टीडीएस भी इसमें से ही डिडक्ट होगा. दैट्स ओनली वन सेक्शन वेयर ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंस. नॉर्मल रूल क्या है? विच एवर पेमेंट से यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, फ्रॉम दैट यू स्टार्ट डिडक्टिंग टीडीएस. क्लियर है? Needless to explain, TDS is deducted only if the income is taxable in India. If a particular income is exempt and if we make it suffer TDS, ultimately income and nothing will go because it is exempt income. Then whatever TDS is deducted will become refund. Then no need to. देखो TDS का objective was also what? People were receiving income but not declaring. तो इनकम डिक्लेयर करने के लिए मतलब टीडीएस क्रेडिट के लिए यू विल हैव टू डिक्लेयर योर इनकम. हियर यू डोंट हैव टू डिक्लेयर बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट इनकम, इसलिए नो टीडीएस ऑन एग्जेम्प्ट इनकम. करेक्ट. ऑब्वियसली ओनली इफ इट एक्सीड्स मॉनेटरी लिमिट, जैसे 30 का कंटिन्यूअस डिस्कशन वी आर डूइंग, बट दैट्स जस्ट वन ऑफ द सेक्शन. रेंट में 240 एंड इंटरेस्ट में 40,000 एंड देन कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो अभी डिस्कस सिंगल पेमेंट मोर देन 30, एनुअल पेमेंट मोर देन 1 लाख के, कमीशन का मोर देन 15,000 के. दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस. There are many sections in TDS का चैप्टर. ये तो खाली important we are discussing. समझा? Rate of TDS is given in each section. That also we know. I told you that net payment is given, so you can still become clever. क्या करने का? 70,000 आपको दिया है नेट पेमेंट, तो 30,000 TDS. कैसे? 1 lakh is the nearest round figure. करेक्ट है? रिस्क क्या? लेकिन it may not be the case always, to be very honest. Okay. हाँ, तो 1 lakh is going to be the answer. Casual winnings जो होता है ना, उसमें you get 30% TDS, मतलब you receive only 70% of the amount. Okay. That means can I say every section has given the rate except 2 places. एक है सैलरी का सेक्शन which you will learn and एक नॉन रेसिडेंट का सेक्शन which you will not learn at इंटर. ये फाइनल का बुक है. ओके. तो सैलरी इज देयर इन योर सिलेबस, नॉन रेसिडेंट इज नॉट देयर, तो यू फोकस ऑन दिस सैलरी. सैलरी के सेक्शन में क्या लिखा पता? एम्प्लॉई है पेई, उसका फुल टैक्स यू डिडक्ट. वी आर नॉट गिविंग योर रेट ऑफ 1 to 5, 10%. सपोजिंगली एम्प्लॉई का सैलरी, टैक्सेबल सैलरी इज 10 lakh rupees आफ्टर ऑल डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, एवरीथिंग. इफ ही इज इन ओल्ड रेजिम, ही विल टेक ऑल द बेनिफिट्स. नो, टैक्सेबल सैलरी इज 10. प्लस ही इज गिविंग यू डिटेल्स ऑफ अदर इनकम ऑफ 5 lakh. उसने इंटरेस्ट कमाया, रेंट कमाया, टैक्सेबल 5, मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम इज 15 lakhs. 15 lakh पे कैलकुलेट टैक्स. 260 to 500 इज द रॉन्ग आंसर.
तो बोलो फाइनल आंसर 273. Now is it possible that other 5 lakh income also has suffered some TDS? Supposingly 10% उस पे TDS लगा, तो how much TDS is deducted on the other 5,50,000? तो 273 में से how much government has already received? 50. How much is the balance? This employer has to deduct full tax. Salary के section में, if you remember that bulk filing वाला concept, where employees are poor guys are employees, no? They don't have that much time that they can take a leave and do coordination with CA. So on your behalf, all the tax ka compliances will be done by your. देखो boss is a businessman. He has got all the time on the planet to do tax compliances, accounting work, or get the audit done and all that. देखो salary वाले से we don't get their books of accounts audited. Salary वाले को there is no tax audit or transfer pricing. Salary वाले का burden we want to keep as less as possible. So you do one thing, furnish all details to your employer. Details of your other incomes. If the other incomes have suffered TDS, details of other, you can have deductions also, no? 80C, 80D, 80G, do all this affect your total income? Furnish all the details to your employer. Employer will take into account everything. Compute your total income as per income tax provisions. Compute your total tax. That's your payable to the government. Now he will see other का already क्या क्या TDS कट गया, adjust that balance, he will divide by 12 and deduct from your monthly salary. That means on your behalf all your duties will be done by the employer. So we are not giving you a rate of 1, 2, 5, 10, 20, 30. आप वो net off करके नहीं कर सकते. Salary में it will always be full tax at applicable rates. Correct है? When we deduct TDS 10%, 20%, 30%, 1%, we deduct only 10 or 1 or 2 or 5. 10% पे 10,000 आता है ना, तो फिर उसमें भी डोंट ऐड सेस. सपोजिंगली सीए का 1 लाख, ये वाला सबसे पहला पेमेंट 10% इज द रेट. दैट मीन्स 10,000, नॉट के 10,000 प्लस 4% सेस या सरचार्ज. टीडीएस के रेट में वी विल नेवर ऐड सरचार्ज और सेस एक्सेप्ट, गैस मारोगे क्यों? कि फुल टैक्स विल इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस. तो रेट ऑफ टीडीएस to include surcharge and cess only in these 2 cases, not in other cases. चाहिए तो आपको लिख देता हूं. This is that PDF that you will be taking no last में. तो other cases में surcharge and cess will not be added. Is that clear? चलिए, did I tell you about non furnishing of pen? तो guy is not visible only. बहुत ज्यादा काला काला नहीं, कोई बात नहीं, PDF आपको मिलेगा, उसमें विजिबल हो जाएगा. रिस्क है. कालीन भैया ये कैसे पता आपको? अच्छा, मीम देखा है. एक्चुअली है ना, मिर्जापुर एंड फैमिली वैन हैव बिकम बिगर हिट्स देन व्हाट दे वुड हैव बिकम बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मीम्स में. इन द मेकर्स आर हैप्पी व्हेन पीपल आर मेकिंग फन ऑफ, दैट इज गिविंग देम पॉपुलैरिटी. सेम इज द केस ऑफ एक और Amazon प्राइम पे पंचायत करके, पंचायत नहीं सीरीज है वो, मालूम 2 सीजन्स आर आउट ऑलरेडी. होमवर्क देख लेना. इफ द पेई को व्हाट ड्यूटीज वी हैड गिवन, डू यू रिमेंबर? फर्निश पेन फर्निश नहीं किया तो व्हाट विल बी द टीडीएस? 20% और हायर. 20% और जो सेक्शन का रेट है विच एवर इज हायर. मिनिमम टीडीएस विल बी 20, बट देर आर दीज 3 सेक्शंस विच आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब 20 नहीं होगा. इन केस ऑफ 192A, इफ यू वांट टू नो व्हाट दिस इज, premature withdrawal of RPF. RPF का withdrawals are exempt, but if you complete 5 years, I am not teaching, I am reminding you. If you withdraw money from RPF before completion of 5 years, so it is taxable. It's called premature withdrawal. You furnish PAN, तो 10% TDS आएगा. Don't furnish PAN, तो normal rule क्या है? 20. But here it won't be 20, it will be MMR. Now you all may not know what is MMR. No? There are 2 ways in which I can explain MMR to you. Legal and logical. Which one do you want? माथा तुम्हारा, बोलो दोनों. Is Mukesh Bhai the individual and assessee under income tax? Will he be paying tax under income tax? As an individual, what basic rate he must be having? क्या लगता है आपको? वो 42.744 कहां से आया आपको? We have done this calculation before.
मैंने आपसे बेसिक रेट पूछा, आई डिडंट आस्क यू ऑल इंक्लूसिव. 30. विल मुकेश भाई हैव सरचार्ज? व्हाट डू यू थिंक? वो भी कौन सा? मतलब क्वेश्चन इज विल मुकेश भाई का इनकम बी क्रॉसिंग 5 करोड़ रुपीज? 5 करोड़ रुपीज एक दिन का मुकेश भाई का इनकम नहीं, एक दिन का आकाश का पॉकेट मनी. प्लस मुकेश भाई इफ ही इज वॉकिंग और उनके हाथ से 2000 का नोट नीचे गिर जाता है, he doesn't bend to pick it up because in that much time he'll lose more money. The time that he wastes. Hashtag Ambani who? 4% says MMR in income tax is 42.744%. Maximum marginal rate. Mukesh Bhai rate. That's the logical answer. Legal answer is the highest rate of income tax applicable to individuals for a given assessment year, including the highest surcharge, highest cess. हाईएस्ट इंडिविजुअल का 30, हाईएस्ट सरचार्ज 37, सेस एक ही रेट है 4%. डोंट टेल दिस टू आंटी दैट देयर इज ओनली वन सेस. मत बोल, पहले ही बता रहा हूं. इफ यू गो एंड टेल हर आंटी आंटी देयर इज ओनली वन सेस, सबका अलग करो ना. तो नॉर्मली इफ यू डोंट फर्निश पेन तो 20%, बट ये आरपीएफ वाले सेक्शन में वी विल मेक इट एमएमआर. एंड these two are sections, not as important as your contractor या commission या interest. है दो सेक्शन है, there is one section TDS on e-commerce. मतलब अगर Zomato is paying any restaurant, you will pay Zomato, no? Zomato has to pay restaurant. Yes. Anybody using Zomato Pro? Do you even know what is Zomato Pro? Gold था Zomato Gold, एक पे एक फ्री, दो पे दो फ्री. 2 पे 2 was food, नहीं 2 पे 2 was drinks, and एक पे एक was Zomato Gold. Zomato Pro, you all don't have any idea, no? Those who order less, no? Zomato gives something called Zomato Pro. कुछ 2000 rupees per annum and unlimited free deliveries. This is for those who are not very frequently ordering. मतलब it is by invite only. Everyone cannot take Pro. It is by invite. मेरे घर पे जितना भी फूड ऑर्डर होता है ना, ऑनलाइन ऑर्डर, एवरीथिंग माई वाइफ यूज टू डू. हार्डली कभी माई फोन से, व्हेन नोबडी इज एट होम, स्टिल आई यूज टू टेल हर ओनली फोन करके कि ऑर्डर कर. आई एम टू लेजी टू डू ऑल दिस, टू लेजी टू डू ऑल दिस. बस एक बार है ना, बहुत तेज झगड़ा हो गया था कोई रीजन से, एंड आई वॉज पर्पसली नॉट टॉकिंग टू हर. आई वॉन्टेड टू अवॉइड मतलब बात, एंड आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट. तो उस टाइम पे चश्मे का लेंस क्लीनर आता है, स्प्रे आता है वो, तो आई ऑर्डर्ड अमेजॉन में. अब मेरे फोन में अमेजॉन लॉगिन इज ऑल्सो हर अकाउंट, क्योंकि प्राइम लिया हुआ है. ऑर्डर आ गया, शी इज चेकिंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर. बोला ये किसने किया? एक्चुअली हर अमेजॉन लॉगिन आई हैव डन, माई सिस्टर हैज डन, 2-3 ऑफ हर फ्रेंड्स हैव डन, क्योंकि वो प्राइम में फ्री डिलीवरी रहता है ना. तो शी कॉल्ड एक एक करके सबको, आज तुमने कुछ ऑर्डर किया क्या, तुमने कुछ ऑर्डर किया है. अल्टीमेटली इट वॉज पेड, तो दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, सीओडी नहीं था. बट शी इज लाइक किसने किया किसने किया. फाइनली इट केम होम. आई सेड मैंने किया, मेरे को ऑर्डर करना आता है, आई डोंट डिपेंड ऑन अदरवाइज. बस खत्म हो गया उतना. बस आई जस्ट हैड टू शो दैट एवरीथिंग गॉट ओवर. फ्रॉम नेक्स्ट डे अगेन, ए प्लीज ऑर्डर करना, प्लीज, ए भूख लगा है प्लीज ऑर्डर. बेसिकली आई हैव टू प्लीड ऑलवेज. तो शी ऑर्डर्स रेगुलरली, मेरे फोन से ऑर्डर नहीं होता है, तो आई गॉट द इनवाइट ऑफ Zomato Pro. तो वो 2000 लेके फ्री डिलीवरी ले लिया. अब अगेन द प्रॉब्लम इज, आई एम डेफिनेटली, अभी यहाँ पे घर पे कुछ ऑर्डर करना है तो मैं थोड़ी क्या इधर से करने वाला, आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट. बट मैडम इज CA एंड CS. मैडम ने अपने फोन में Zomato में लॉग आउट करके मेरा लॉग इन कर दिया, एंड मल्टीपल डिवाइसेस आर अलाउड बाय Zomato. एंड 1600 या 2000 रुपया कुछ दिया. मेरे को लग रहा है 1 लाख से ज्यादा का डिलीवरी चार्जेस वेव ऑफ हो गया बाय नाउ. तो Zomato का शेयर प्राइस इज सो मच डाउन, नो, वी आर वन ऑफ द पीपल who are behind it. Okay, that means can I say Zomato Pro में कोई रेस्टोरेंट में भी ऐसा है 25% फ्लैट डिस्काउंट, नो अपर लिमिट, फ्लैट 25% डिस्काउंट. जब 5000 का बिल है तो आई लॉग इन टू Zomato Pro, रेस्टोरेंट वाले को दिखाता है वो, Zomato says received 5000, but Zomato takes from me only 3750 डिस्काउंट कर, 25% सीधा डिस्काउंट. तो आई पे Zomato is paying the restaurant. आई पे ओला मनी, ओला इज पेइंग. ओला ने जानबूझ के पोस्टपेड लॉन्च किया. दैट डोंट पे कैश, पे लेटर. अल्टीमेटली यू विल पे देम, नो, डोंट पे द ड्राइवर डायरेक्टली. ड्राइवर लोग को हम बाद में देगा. दे वांट यू टू पे देम.
इसलिए दे गिव यू इंसेंटिव्स ऑन ऑनलाइन पेमेंट। आप समझे? तो आई पे ओला पोस्टपेड लॉन्च किया। एवरी टाइम आई टेक एन ओला, वेरी रेयरली एड बिकॉज आई माई सेल्फ ड्राइव, तो रेयरली होता है, बट इफ आई टेक, वो रोज मेल आता है, प्लीज क्लियर योर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। बक सैटरडे इवनिंग इज अबाउट नॉन ड्राइविंग, इट इज अबाउट, वो तो मालूम है ना सबको, सैटरडे इवनिंग्स आर नॉट फॉर ड्राइविंग, सैटरडे इवनिंग्स आर फॉर कैब्स। फाइनली एवरी सैटरडे इवनिंग जब कैब बुक करना होता है तब इट सेज पहले लास्ट सैटरडे का क्लियर करके, then only next cab will be booked. So I am paying Ola, Ola pays the driver, I pay Zomato, Zomato pays the restaurant, correct or no? So basically the portal owners are called e-commerce operators. Zomato, Ola, enough examples. You pay Practo, Practo pays the doctor. Practo एक वेबसाइट है जहां से you can take consultancy services from doctors online. कोई भी ऑनलाइन पोर्टल ले लो, you pay the portal, portal pays the e-commerce participant. Restaurants are participants, drivers are participants. तो उसका TDS अपन 94 O में। Pan furnished, तो there is a certain rate. Pan not furnished तो 20 नहीं होगा, 5 होगा। इसका नॉर्मल रेट इज 1%, तो 20 विल बिकम वेरी हाई, तो 5 रखा है। और ये जो 194 क्यू है ना, दिस इज तो परचेस ऑफ गुड्स, TDS का रेट इज 0.1% इन दिस सेक्शन, वो भी ऑन एक्सेस ओवर 50 लाख, मतलब 51 लाख का खरीद रहे हो तो 1 लाख का 0.1%। इफ यू आर बाइंग वर्थ 60 lakhs तो 10 lakhs का 0.1%। फर्स्ट 50 लाख पे नो TDS, आफ्टर 50 lakhs 0.1%। दिस इज लाइक अ बेसिक एग्जाम्पशन। और इस 0.1 को इफ वी मेक 20, यू अंडरस्टैंड इट विल बिकम 200 टाइम्स, इसलिए वी विल रेस्ट्रिक्ट इट 5 विच इज ऑल्सो 50 टाइम्स। ये एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? दिस पॉइंट यू कट, NJA नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, ये फाइनल में यू डोंट कट, आई एम कटिंग, मतलब तुमको कुछ करना नहीं है अभी, बैठो आराम से। ओके, सो इज दिस क्लियर? पेई का ड्यूटी फर्निश पैन, दिस ड्यूटी ऑल्सो बी डिस्कस इफ द पेई इज अ नॉन फाइलर। ये जो रेड में लिखा है ना, दीज आर अमेंडमेंट्स। ओके, यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ द लास्ट ईयर एंड योर ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। नाउ डिड आई एक्सप्लेन टू यू समवेयर हियर that if this is the year that we are talking about, तो इसका ड्यू डेट हैज नॉट एक्सपायर्ड, वी कांट चेक दिस ईयर का नॉन फाइलर, तो वी विल चेक विच, बाय डिफॉल्ट वी विल हैव टू लीव 1 year in between, करेक्ट है? सो प्रैक्टिकली हाउ दे आर डूइंग, इसलिए तो एक्सप्लेन किया दैट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ नॉन फाइलर्स फ्रॉम ईयर, न्यू नेम्स वोंट बी एडेड, बट इफ यू फाइल ऑफ दिस ईयर तो रिमूव हो जाएगा, करेक्ट? तो लास्ट ईयर तक द रूल वाज फॉर दोज हु वांट टू नो व्हाट इज द अमेंडमेंट, if you don't file return of 2 years तो you are non-filer, but they said 2 साल नहीं, 1 year also you don't file return। समझा? यहां पे ऐसा लिखा था immediately preceding 2 previous years, अमेंडमेंट करके क्या बोल दिया, 1 year also you don't file and उसका टाइम लिमिट has expired, this line means 21-22 will be excluded, क्योंकि 21-22 का टाइम लिमिट has not expired, इसलिए I do return filing before TDS even in final, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग पता है तो यू नो जॉन दैट हैज एक्सपायर्ड, इसलिए भी स्किप्ड 21-22, समझा? एंड द एग्रीगेट TDS प्लस TCS ऑफ द पे, मतलब जो नॉन फाइलर है उसका उस साल का TDS इज 50,000 रुपीज और मोर। यहां पे इट वॉज रिटर्न एग्रीगेट TDS TCS ऑफ बोथ ईयर्स, बट आर बी रिड्यूसिंग नॉन फाइलर का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फ्रॉम 2 to 1, तो TDS ऑल्सो वी विल चेक ओनली ऑफ दैट ईयर 2021। If your TDS is 50,000 or more, तो you become a non-filer। मतलब सुनो, anybody whose TDS is less than 50,000, वो नहीं फाइल करेगा तो भी नॉन फाइलर नहीं है। I hope you understand, correct है? Not filed for 2021, which is why 139(1) has expired, and that year का your TDS plus TCS total was 50,000 or more, तो what will become TDS? Double rate or 5%, whichever is higher। Double rate or 5%, whichever is higher, but there are some sections to which it does not apply, जैसे कि सैलरी में already we are deducting full tax, तो not applicable। या RPF वाले में did we know that non payment, ये non pan पे already MMR लग रहा है, तो one place we are punishing this person, तो इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं। ये these sections I call them बाजीगर and बड़ा बाजीगर, this is lottery winnings, तो बाजीगर, and this is when you win money from horse races, betting का money, not OMRH, betting का money, तो बड़ा बाजीगर।
बोथ हैव टीडीएस का रेट ऑफ 30%. 30 को क्या डबल करेगा ब्रो? यू अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज समथिंग दैट यू कैन इग्नोर. एलबीसी फाइनल के अंदर देखता है. दिस इज व्हेन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. दे वांट टू अवॉइड कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक. थ्रेशोल्ड डाला है कि इफ यू विड्रॉ मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम योर ओन अकाउंट, तो देयर इज टीडीएस ऑफ 2%. सपोजिंगली यू विड्रॉ 1.5 करोड़ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, तो 50 लाख पे 2% टीडीएस लगेगा. 50 लाख का 2% कम्स टू 1 लाख. 1 लाख रुपीज. तो बैंक विल गिव यू ओनली 149. बैंक विल गिव यू 1 लाख लेस. दैट्स नॉट योर लॉस. यू विल गेट इट बैक फ्रॉम गवर्नमेंट. तो यू कांट ऑब्जेक्ट टू दिस. इफ वी वर टेकिंग अवे 1 लाख एज पेनल्टी नो फॉर कैश विड्रॉल, तो यू कैन ऑब्जेक्ट. बट आर वी गिविंग इट बैक? तो ओनली योर कैश फ्लो इज गेटिंग अफेक्टेड. You can't object. You know why? Why do you want so much cash? Even चाय वाला सब्जी वाला is accepting Paytm पर 12 रुपए प्राप्त हुए. तो why do you want so much cash? And उसमें भी 1 करोड़ तक तो we are allowing, no? And उसमें भी this is not your loss. We are giving you the money back to curb cash in the economy. Cash withdrawal from bank के ऊपर TDS का एक section. And there is one thing special about this section. Completely different from the rest of the chapter. Please understand. CA को instead of paying 1 lakh, we pay 90,000. So what will we take in the income? 1 lakh. And give credit of 10,000. Contractor को instead of 1 lakh, we pay 99,000. क्योंकि उसमें 1% है. Income is 1 lakh. Credit of 1,000. Cash withdrawal of from bank. मतलब bank will pay you 149 instead of 150. How much will go in your income? Bakwas, 0. It's a contra entry. You are withdrawing your own money. 0 rupees. Because you are, ये है ना डिस्करेज करने के लिए दिया. 194N का one thing is different from the entire chapter. That 194N में the payment is not income of the payee. Forget the TDS amount. The gross payment or the net payment is only not income. Is that clear? And ये IAIBM have been added in the list by way of amendment. मतलब इनके ऊपर भी नॉन फाइलर प्रोविजन विल नॉट अप्लाई. फॉर दोज हु वांट टू नो, ये इफ यू सेल योर प्रॉपर्टी फॉर 50 lakhs और मोर, ये इफ यू आर गिविंग प्रॉपर्टी ऑन रेंट मंथली मोर देन 50,000. एक रेंट का एग्जिस्टिंग सेक्शन है 194I वेयर एनुअल लिमिट इज 240 एंड यहां पे मंथली 50,000 का रेंट. यू कैन कंपेयर 240 एंड 50. Either you make 240 को 20 and compare with 50, or you make 50 को 6 lakh and compare. मतलब कहना इसे यहां का monetary limit is higher. Correct? So those who don't deduct in this will deduct in this because this is a high value transaction. Likewise, there is a section 194M. When you make payment to contractors, professionals, there are respective sections for them 194C, J. Correct? But in section में ऐसा लिखा है that for contractor and professional services, personal payment, no TDS. If there is something called a personal payment, no TDS. जैसे आप contractor को दे रहे हो for furnishing of your own house, is that a personal payment? Your own home का furniture, no TDS. आप समझा क्या? Supposingly, what is your inclination towards which gender? सुना ही नहीं दिया शर्मा. नहीं बोलना ऑन रिकॉर्ड. इट्स अलाउड. देखो, तो ऐसे शर्म करने का बात नहीं है. ये लीगली अलाउड है. Supposingly you want to undergo, not you but anyone in general, I am not talking about you, general बोल रहा हूं, general example, you want to undergo a gender change operation. अरे वो बॉबी डार्लिंग ने करवाया ना, तो you will pay the doctor more than 50 lakh rupees. You want to get your home का furniture done. Home का furniture can cross 50 lakhs very easily. Correct? That means, are you making payment to contractor or professional fees? Huge value, high value transaction. But being personal payments, they don't suffer TDS.
कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल में पर्सनल पेमेंट्स का टीडीएस नहीं, सैलरी में है. रेंट ब्रो, दिस कैन बी योर हाउस का रेंट. These are personal payments. They suffer TDS. But there are two cases where personal payment does not suffer TDS. Which two cases? Contractor and professional. But when it is such a high value transaction, more than 50 lakh hai, so you deduct in this section. If you deduct in 190 for C and J, so no problem. If you don't deduct there, then you deduct here. If it crosses 50 lakh, such values, high values, we have to report. Is that understood? तो इनके ऊपर ये नॉन फाइलर वाला प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इज एन अमेंडमेंट. लास्टली, इफ बोथ सेक्शंस आर एप्लीकेबल, देखो 206AA इज व्हाट? नॉट फर्निशिंग पेन, तो टीडीएस बिकम्स मिनिमम 20%, एंड 206AB इज नॉन फाइलर, तो डबल और 5% विच एवर इज हायर. व्हाट इफ द पेई इज सच अ चोर दैट ही डज नॉट गिव द पेयर पेन एंड डज नॉट फाइल रिटर्न? मतलब वो 20 वाला ऑल्सो एप्लीकेबल एंड डबल वाला ऑल्सो एप्लीकेबल. तो 20 वाला या डबल वाला, विच एवर इज हायर, बोथ सेक्शंस में से विच एवर इज हायर. नॉन फर्निशिंग पेन का कॉन्सिक्वेंस, नॉट फर्निशिंग रिटर्न का कॉन्सिक्वेंस, बोथ गेटिंग अट्रैक्टेड, तो बिटवीन देम विच इज हायर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइनल में तो वेरी इंपॉर्टेंट. इंटर में आई डोंट नो एट व्हाट लेवल दे मे टेस्ट इट. नाउ ऑनेस्टली एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस आर नॉट worth it. Okay, we'll only have to wait and watch what they do. But let me explain what this is. There are two events of making payment to someone. Okay, supposingly I am your chartered accountant. You hire me for your audit, 1 lakh rupees. I complete the audit and I give you a bill. So you will pass an accrual entry. Audit fees account debit to CA account. Correct? Then you make payment to me. So CA account debit to bank account. तो सीए का अकाउंट क्लोज, डेबिट क्रेडिट, ऑडिट फीस वेंट टू द पीएनएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए, एंड टू बैंक क्रेडिट हो गया बिकॉज यू पेड द सीए. अल्टीमेट इफेक्ट इज ऑडिट फीस टू बैंक बट स्प्लिट इन टू बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस. कैश बेसिस होता तो डायरेक्टली ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके खत्म करते, बट वी हैव बुक्ड द बिल एंड पेड. दैट मींस कैन आई से वी क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ द सीए फर्स्ट देन मेड पेमेंट. ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है, कम टू यू एंड आई से आई डोंट ट्रस्ट यू, यू विल नॉट पे मी लेटर, पहले पैसा दे. So can I say CA account debit to bank account? Then after I finish the work, I will give you the bill and you'll recognize the bill. That is going to be audit fees account debit to CA account. Correct? That means this time payment happened first and credit happened later. So when will TDS come? At the time of credit or at the time of payment? Whichever is earlier. But there are these 9 cases where TDS will come only and only at the time of payment. मतलब expense account debit to payee account is a journal entry, no TDS. Only when it is payee account debit to bank account, there will be TDS. TDS will come only at the time of payment. Accrual के time पे there will be no TDS, only payment के time पे there will be TDS. Is that clear? So these are these 9 cases. You may just read the list once. Normal rule क्या है? Whichever is earlier. लेकिन 9 cases में it will be on actual payment. इसमें देखो, if you want to know, सैलरी है, सैलरी का TDS is the most important that you need to note. सैलरी के साथ in the same series of 192 there is RPF. RPF से भी when you withdraw then only it is premature, no? जब तक पैसा पड़ा है there is no accrual entry. Is that clear? As far as बाजीगर, बड़ा बाजीगर are concerned, think about it. You win then only you win, otherwise there is nothing called accrual in those cases. Correct? Likewise, when you withdraw money from National Savings Scheme, National Savings Scheme is less popular because when we put money we get ATC, but when we withdraw money it is taxable. इससे अच्छा तो put money in PPF, because when you put PPF, if you remember, put ATC, interest exempt and maturity also exempt. So it is better that people don't put in NSS. क्या लिमिट? तो 80C पे टोटल लिमिट है, तो एनएसएस ऑल्सो फॉल्स इन दैट 80C का लिमिट ओनली, नो? सो अल्टीमेटली यू हैव टू यूटिलाइज योर 150. यू मस्ट हैव यूटिलाइज 80C में आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ही पूरा, तो योर 80C इज अनयूज्ड ऑल्सो, पॉसिबल है. ओके, तो पीपल इन्वेस्ट इन पीपीएफ. कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल ओनली व्हेन यू गेट मनी. मित्रों, तो टीडीएस विल कम ओनली व्हेन पेमेंट इज बीइंग मेड. करेक्ट और नो?
लाइकवाइज इफ बाई चांस आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मेच्योर हो गया, फाइनल वालों को तो सिखाना पड़ता है दैट डेथ केसेस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, मैच्योरिटी केसेस इफ स्टे विद इन द लिमिट्स 20, 10, 15 तो एग्जेम्प्ट. So whenever it is exempt, there cannot be TDS. TDS will come only if it is taxable. Only at the time of payment. क्योंकि insurance company is not going to pass any accrual entry. You die या maturity हुआ तो submit your claim and you get your money. Correct or no? Cash withdrawal from bank account. Without withdrawal, there is no question of TDS. In fact, what is special about this section different from everything else? It is not income. And last, there is a section 194A interest ka section. Please pay attention. Please listen. There is something special here also. Just like 194N, it is not income. Different from the entire chapter. यहाँ पे pay attention. Bank का FD है. Bank will give you interest. उसका TDS will come. RD है. उसका TDS. If there is a loan के ऊपर interest है, उसका TDS will come. 194A is very big. 194A में रूल इज क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ये रूल है. दैट मीन्स इट इज नॉर्मल रूल के एक्सेप्शन. नॉर्मल रूल अर्लियर वाला. करेक्ट सर, बट देर इज दिस वन इंटरेस्ट. विच इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन एंड एनहेंस कॉम्पेंसेशन, जिसका टीडीएस विल कम ऑन पेमेंट बेसिस. मतलब एफडी इंटरेस्ट whichever is earlier, RD whichever is earlier, loan whichever is earlier, only interest on compensation and enhanced compensation, actual payment. You know why? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन के बारे में 3 थिंग्स बोल. तेरे को इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन के बारे में क्या मालूम? ऑलवेज IFOS, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट. एंड तीसरा फ्लैट 50% डिडक्शन. तो दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन विच ईयर? तो फिर पेयर विल ऑल्सो डिडक्ट टीडीएस ओनली इन द ईयर ऑफ पेमेंट. पेयर के लिए तो पेमेंट हुआ ना यार. करेक्ट. तो अंडरस्टूड बाय इट कम्स इन पेमेंट का लिस्ट. एंड व्हाट इज स्पेशल हियर? फुल सेक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. Full section at the time of payment. Full section at the time of payment. But here, full section is earlier. Only one transaction comes at the time of payment. Which transaction? Interest on compensation and enhanced compensation. Full section will come at the time of whichever is earlier. Only one transaction will come at the time of payment. That's the difference. Clear है? और ये जो next point है that we have already discussed is TDS attracted on personal payments. What are the 2 exceptions? Contract and profit. और उसमें भी if it crosses 50 lakh rupees तो फिर 194M में we deduct that also. This next thing called equalization levy, also famously known as Google tax. Google tax दिख रहा है आपको प्रोजेक्टर में? Because in the recording it is very clearly visible, but प्रोजेक्टर का कुछ फोकस पता नहीं क्यों. और मे बी दिस वॉज वाइल आई एम राइटिंग एवरीथिंग इज क्लियर ओनली. ये तो बुक की मीम्स क्लियरली शायद ये मीम है भी नहीं. इट इज ओनली एन एक्सप्लेनेशन फॉर मेकिंग द बुक मोर अट्रैक्टिव. दिस इक्वलाइजेशन लेवी का पार्ट नॉट एप्लीकेबल इन सीए इंटरमीडिएट. कुछ तो डिफरेंस है ना प्रोपोर्शन. इक्वलाइजेशन लेवी कम्स इन सीए फाइनल. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली वी आर डन विद अ क्लियर कट इंट्रोडक्शन ऑफ TDS. We exactly know now what is TDS, what are the fundas. The main target behind learning everything in TDS क्या होएगा अपना main target? The rates and monetary limit of every section. Rates and monetary limits. We'll try to learn as much as we can. जितना ज्यादा आप याद रखो till your exam, उतना it is going to be better. Okay? 3 lecture है तो 3 lecture के अंदर तो we will easily complete whatever we desire. See, initially we had thought when we started, before November exam, we had thought that TDS तो ठीक है, रफ इंट्रोडक्शन PGBP में दिया. We will not do it. As per your request के properly करते हैं तो properly करेंगे. Everything we are doing. खाली क्या नहीं कर रहे? Writing. Everything we are doing only. Is that clear? So easily we will be able to complete in the remaining 3 lectures.